So Pritesh and Sandesh, the opening pair, and Vindesh with the ball. Long run up and the ball is in the air, fielder settling and then the first wicket, the big wicket. Great start by the fielding side. Shri Sai team, first ball, first wicket. They are the defending champions and they have started excellently, I will say, in this sixth season of Aldona Premier League. Busalia, the new batsman coming in. And what a wonderful start by Vindesh, the bowler for Shri Sai team. Vindesh Nagvikar, the bowler. Both the teams are well balanced sides. Snindon Sean, the icon player for Shri Sai team, and Sandesh Kamli, the icon player for Sushant 11 Konna. Great ball, great ball. Rising delivery, there was an opportunity, but a quick single there. Prajesh Mandrekar will be on strike. And Busalia will be on non-striking end. Just first ball on the first wicket, but thereafter a single. So the first runs on the board. Wonderful delivery once again. Great bowler. A 30-yard long run up for the bowler. It's Vindesh. And bowling it quick with the change of pace. Those cutters, leg cutters in between. So just a single run on the board and a wicket down. Sushant 11 team. This time attempting the reverse shot. So a dot ball. No connection between bat and ball. So another dot ball. Wonderful organization. The sixth season of this APL. And giving a platform to young as well as the senior players. And a great initiative by warm-up cricketers. Once again it's in the air, but this time point fielder settling in and it's taken. He was off balance. But a wonderful catch taken by Deep. Deep, the fielder. And so the second wicket down, both the openers are into the hut, into the dugout in the first over. And it's been a brilliant over by Vindesh for his side, Shri Sai team. Still a delivery to go, but a great start, brilliant start. One of the great start. And a great bowler to see. I'm pretty delighted to see a bowler bowling it full flesh, giving his whole heart to the team. As I said, a long run up and that release, the rising delivery. New batsman coming in. Great delivery once again, a great delivery, good land delivery. Straight onto the body. Couldn't do, just defend it as it was the last delivery. And wonderful, the first over, the power play over coming to an end. With just the 1 over and 1 run on the board and 2 wickets. So a brilliant start by Vindesh and for Shri Sai team. First over, after the end of first over, 1 run on the board and 2 wickets.
So the change in bowling now. It's new bowler. It's Snaden to bowl the second over of this innings, and it's been a wonderful start by Sri Sai team. First over was bowled by Vindesh, and it was a terrific first over, picking up the two crucial wickets of both the openers and just giving away a single run. But this time nicely played behind into the third man region and equally well fielded. Just two runs headed to the tally. Now score moves on to 3 runs with those couple of runs. Sean bowling the second over for Sri Sai team. Abu Salia on strike. Sir was a student. The clash out in the center. Swing enemies. Big swing by Abu Salia, but couldn't connect it. A dot ball. And a brilliant bowling effort continues for Sri Sai team, the fielding side. And it's shown with the ball. This time much fuller, straight onto the stump, much fuller ball into the block hole. Nicely defended. They know he's a good bowler, giving him some respect, showing some respect towards the bowler, to some great deliveries. This time a big hit, there is the fielder, and he takes it comfortably. A wonderful judgment by the fielder. And it's Vindesh once again. He was brilliant with the ball, and now a brilliant effort in the deep. And Abu Salia departs. He was under pressure, some dot deliveries and pressure rose, and he was looking for the boundary and just found the fielder in the deep. It's Vindesh. So one more wicket down for Sushant 11 team. One more wicket down, and Abu Salia departs. Sanket, the new batsman coming in. So the score is 3 runs with the loss of 3 wickets. It is a football score lineup at the moment. Great delivery outside the off stump. Sanket couldn't do much about it. Was looking to guide that ball, but no connection between ball and bat. So another dot delivery. Has been a wonderful start, a dreamy start, I will say, for the fielding side. First was Vindesh, and now it's Sean with the ball, showing all their tricks. It was Fuller this time, full toss ball. Just played on the offside for a single. And here is the end of the second over. So after completion of 2 overs, score is 4 runs with the loss of 3 wickets. Sushant 11 team 4 runs with the loss of 3 wickets after completion of 2 overs. It's Nitesh Gadekar to bowl the third over, the penalty mid over, second last over of this innings, and score is just 4 runs on the board. Great deliveries. Oh, just falling short of that fielder. A small misfield, causing an extra run, just a single. And score moves on to 5 now, 5 runs. Rohit will be on strike. And they need to find
some boundaries now, some big shots. This time short ball, mistimed it and landed safely. But just a single. They even didn't try to go for the second run. They need runs badly now. The batting side, Sushant 11 team. Great bowling, wonderful bowling. This is the third over now. And score is 6 runs on the board and is Nitish with the ball. Charging down the ground, it's in the vacant region. There is a fielder nicely gathered by the fielder. Just 2 runs. Another couple of runs for the field batting side. It's Sushant 11 team. It was a wonderful toss to win for Shri Sai team. The captain Sagar winning the toss and thereafter electing to field first, and wonderful bowling performance by the bowlers till now. And this time the reverse shot trying to go over the infield and dropped by the fielder. We have seen too many dropped catches. The fielding effort by the fielders have been not to that standard. So too many dropped catches in this tournament till now. We saw average, if we consider, is of 2 drop catches per match. This time much shorter and nicely placed into the gap. The first boundary comes for the Sushant 11 team, and it's Rohit on the striking end who has found the first boundary. So it took pretty long, I will say. This is the third over, 4 overs match, and first 2 overs, some quiet overs, some wickets for the fielding side, and the first boundary now coming for the batting side. So something to cheer about for them. And Rohit need to continue in the same manner now. Short ball this time. Just falling short of that fielder, but nicely fielded, nicely fielded. They're going for the second one. No. It's a quick release. Just short of Siddesh in the deep end. Here's the end of the third over. And after completion of 3 overs, score is 14 runs on the board. So 10 runs coming off that over. And here is the final over. And it's Sunil to bowl the final overs, once again marking his run up there. And Rohit and Sanket will be the batsmen for Sushant 11 team. And score is 14 runs after completion of 3 overs with a loss of 3 wickets. And this is the final 6 deliveries of this innings. There is a change. And we some. Yes, the keeper is on with the helmet. Great to see the keeper using the helmet. So he'll be up to the stumps. And here's the final 6 deliveries of this innings. Once again, trying to go for the big one, not getting that connection. They're going for the second run. Let's wait for the decision. Yes, it's out given by the official. So one more wicket down, one more wicket departs, trying to steal that second run. But a great effort in the field and a quick release, great throw. And a run out. So one more wicket down. New batsman coming in is Nitin. Trying to steal that extra run, but not succeeded. But nice thing is that Rohit will be on strike and he needs to play the remaining 5 deliveries.
Great delivery, great delivery. They're trying to go for a run, trying to steal. And Nitin wants to be on strike to face those remaining deliveries. Nitin Devshikar. So one more wicket down. A suicidal run. And Nitin will be on strike to face those remaining 4 deliveries now. And they need to find those boundaries. It's been just a single boundary still now in this innings, just a single boundary. And now they need to find something. Nitin will be the new batsman and will be on strike. He needs to do something. Try to score some runs. And Rajan, the new batsman coming in and will be on non-striking end. Rajan. Slow ball, cutter, and this time it's the connection they were looking for, and wonderful connection by Nitin, and it's a huge one. That's the reason he wanted to be on strike. The cutter delivery, the first 6, we saw the first boundary in the previous over, and the first maximum coming in this final over, and it's Nitin, the new batsman in, facing his first delivery, dispatched it over the commentary box for a maximum 1 on the leg side. And this time that's ball kept low, trying to go on the leg side, trying to play it squarer, but not succeeded. Another dot delivery. And with that maximum score has moved on to 21 runs. Still 2 deliveries left. Lovely delivery, lovely, wonderful delivery. The Scottish doing the trick. Much fuller this time by both the bowler Sunil. Bowling those cutters, bowling the slowers to a great extent. And here's the last delivery of this innings. Trying to go shorter, trying to go wider of the batsman, trying to go out of the reach. And also requesting the captain of Siddhi Sports and Salgaonkar Brothers captain, please come up for the toss. Siddhi Sports and Salgaonkar Brothers captain. Trying to do something different. The bowler Sunil giving away 2 extras to the opposition. Once again requesting captain of Siddhi Sports and Salgaonkar Brothers, please come for the toss. Please submit your playing 11, select the balls and take the toss. Shorter ball, just in front of the fielder, and the ball goes over the fielder. So the lucky boundary, and the innings come to an end with the boundary. So with that boundary, score is 27 runs. So the target for Sri Sai team is 28 runs, 28 of 24 deliveries, 4 overs innings, and 28 runs needed to win this match. Once again, captain, please come of Siddhi Sports.
तो टीम का स्कोर जा तरफ से लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ उतरी है बल्लेबाजी के लिए राइट हैंडेड बल्लेबाज सागर सालगांवकर और दूसरी तरफ से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शायद रहेंगे सचिन जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। सागर जो कि हमेशा स्ट्राइक लेना पसंद करते हैं, अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर लेना खूब जानते हैं। पिछले साल की चैंपियन टीम डिफेंडिंग चैंपियन जो कि उतरे अपने पहले मुकाबले के लिए 28 रनों का पीछा करने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज सचिन और सागर की जोड़ी जो कि मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज नितिन जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर बल्ले के साथ नितिन ने एक छक्का और एक चौका लगाया था, उसकी बदौलत टीम का स्कोर जा पहुंचा था 27 रनों के ऊपर। तो गेंद के साथ भी नितिन का कुछ उसी तरीके का प्रदर्शन होगा। सागर जो कि अपने पुल शॉटों के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, वही सागर सालगांवकर स्ट्राइकिंग एंड पर पहली गेंद हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लेने की कोशिश, अंपायर का इशारा जो कि लेग बाइस का आता हुआ, इसका मतलब अतिरिक्त रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ। सागर जो कि पहली गेंद पर जानते हैं कि बड़े शॉटों की आवश्यकता नहीं है, एक आधा बड़ा शॉट इस मुकाबले में और मुकाबला उनकी तरफ झुक जाएगा, लेकिन फिलहाल सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश। इसी बीच में अगले मुकाबले का जो कि सिद्धि स्पोर्ट्स हैव वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। सुजीत वापस खेल मैदान पर चलेगा। 28 का टोटल सामने से रखा है जिसमें कि एक हो चुका है। सागर अटैकिंग पसंद करते हैं, आप बात सही कह रहे हैं, इस वक्त आवश्यकता नहीं है, पता है कि विकेट पर पहले रहना पड़ेगा मैदान में। ओह यहां पर देखिए पल कॉल क्या है, हमारा का मानना क्या रहेगा, क्या बल्ले पर लगी है पर फिर पैर पर लगी है, लेग बाइस के रूप में, मतलब दोनों ही रन जो कि लेग बाइस के रूप में आ चुके इस मैदान पर। बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों ने अब तक खाता नहीं खोला, लेकिन टीम के स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन, इसका मतलब एक अच्छी बात श्री साई क्रिकेटर्स की टीम के लिए कि 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बन चुके हैं। क्या सागर इस गेंद पर अपना खाता खोल पाएंगे? नितिन ने जो कि बल्ले के साथ बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, एक छक्का एक चौका लगाया था, कुल मिलाकर 10 रन बनाए थे 4 गेंदों में, और गेंदबाजी के मोर्चे पर बहुत ही बढ़िया कार्य निभाते हुए। और इस बार रिवर्स क्या टाइम, गेंद निकली पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। कृष्णा जी जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, कुछ इस तरीके का शॉट, सीधे बल्ले के साथ रन नहीं निकला, उसके बाद बल्ले को आड़ा किया, रिवर्स स्विच के रूप में यहां पर छक्का सागर के खाते में। सागर का खाता 6 रनों के साथ खुला, टीम का स्कोर जो कि 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। देखिए मैच आसान है, नितिन कुछ बता रहे उनको। देखिए सुजीत जिस तरह से माहौल बन रहा है, राज बांदोड़कर यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनकी शादी है। अंदर सपोर्टर के रूप में अगर देखा जाए तो राज उनके पास बहुत अच्छा करीब सपोर्ट है, लेकिन आज नितिन सर शादी में राज व्यस्त है और कल हल्दी है, इसलिए परसों शादी है, इसलिए जाना तो हमें तो मुश्किल होगा, लेकिन राज बधाई आपकी शादी के लिए, साथ साथ हल्दी का दिन आपके। लेकिन नितिन सर यहाँ पर एक जीत होगी तो राज को बधाई और पहुंचेगी, ऐसा चाहने वालों का मानना, लेकिन फिलहाल 8 पर पहुंचा। और इसी बीच बहुत ही बढ़िया सागर जिन्होंने छक्के के साथ अपना खाता खोला। अनुपम ज्यादा रिवर्स स्विच खेलना पसंद नहीं करते, लेकिन शायद तैयारी करके आए कृष्णा जी। बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी, आज पता है हर साल ये कुंभ मेला लगता है,
और हर साल की तरह इस साल भी कुछ अलग रहेगा। एक टीम बढ़ाई गई, मतलब 15 से 16 बन गए, मतलब अलग रहता है हमेशा कुछ ना कुछ। और यही कुछ कारण है इस बात कि तब लोगों को बिल्कुल अच्छा मौका रहते, एक रन वहां पर बनेगा। गए साल एलईडी थे, जबकि आउट और नॉट आउट के लिए ग्रीन और रेड कलर की, जो कि आउट के लिए रेड और ग्रीन, नॉट आउट के लिए थी, कुछ अलग किया था। इस साल थोड़ा सा अलग है, एक टीम और बढ़ाई गई मैदान पर। देखिए वेटरन और अंडर 20 इनके लिए खास इंपॉर्टेंस कुछ मैचेस होते हैं, मतलब उनको मौका जाएगा प्रतियोगिता में। ठीक है, गति परिवर्तन, ये बीट करते हुए इनको रन बन चुके हैं पहले ओवर में, लगभग अभी तक 9 बन चुके हैं, मतलब जो रन रेट चाहिए वो बन चुका है। सिर्फ आपको विकेट पर खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर से अगर किसी भी सूरत में देखा जाए तो विकेट ही आपको यहां से वापस ले जा सकते हैं इस मैच में। और इस बार सचिन का एक बड़े शॉट की तलाश में सिर्फ एक रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ। सचिन इक्के दुक्के के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए लगभग एक ओवर का खेल यहां पर मैदान पर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 10 रनों के ऊपर। 28 रनों का पीछा करती हुई श्री साई की टीम, कप्तान जो कि सागर सालगांवकर अभी भी क्रीज में मौजूद और उनका साथ दे रहे सचिन, पहले ओवर में सिर्फ एक छक्का लगाया, उसके बावजूद जो कि सिर्फ 10 रन जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर। नितिन जी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कृष्णा जी। देखिए नितिन ने कुछ बात करें इस मैदान पर, किस तरह से माहौल रहेगा मैदान में। हम वापस चलते हैं राज के पास। राज जो कि मैच को आनंद उठा देख रहे हैं राज मैच, इसको राज शुभकामनाएं हमने पहले दे दी, लेकिन हर साल लगभग 5 साल हमने एक साथ कमेंट्री की इस मैदान पर। हेलो आप भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस साल शादी के कारण वो पहुंच नहीं पाएंगे। मैं तो कहूँगा अगले साल ये पहुंच सकते, लेकिन फिलहाल शादी में व्यस्त है। शाहीश पालनी राजस्थान में ड्यूटी पर है, वो वहां से मैच को देख रहे हैं। ये भी इस साल नहीं पहुंचेंगे शायद, मुझे लग रहा है शायद। बिल्कुल साहिश, जहां पर भी हमारे आवाज़ आप तक यूट्यूब के माध्यम से मैच को देख रहे, तो आपको शुभकामनाएं अगले साल के लिए, कि इस साल तो बिल्कुल फेल है ये, पहुंचना मुश्किल। राजस्थान में ड्यूटी लग चुकी है, लगभग 1 महीने की 56 दिनों की ड्यूटी रहती है शायद, मेरा नसीब 1 से ऊपर महीना रहता है। तो जित कुछ ऐसे यादगार पल थे। लेकिन साहिश पांडे जो कि मैच विनर खिलाड़ी है, बहुत साल इसने बहुत से प्रतियोगिता में मैच विनिंग की बैटिंग बॉलिंग की, इस साल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल वापस 10 पर पहुंचा, टीम का स्कोर 18 पर 18। बिल्कुल साहिश जो कि ड्यूटी पे, लेकिन फिलहाल अपने ड्यूटी पर है सागर सालगांवकर और सचिन की जोड़ी मैदान पर 28 रनों का पीछा करती हुई, और गेंदबाजी के मोर्चे पर है संकेत। हालांकि संकेत जो कि गेंद को दोनों तरफ घुमाना जानते हैं, और इस बार देखिए क्या खूबसूरत थी वो गेंद। देखिए छोटा विराट इस नाम से लोग पूरे एरिया में जानते हैं ढक्टू को। गए साल 12 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, तब मैडन और डाला उस खिलाड़ी ने। कुछ इस साल कुछ ऐसा कुछ कारनामा ये खिलाड़ी कर जाए ना, तो बात बनेगी मैदान पर। फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद, हवा में थी गेंद, हवा में छकाया बल्लेबाज को। देखिए गेंद को भी हवा दी थी, इसका कारण क्या था? युगेंद्र सिंह चौल के देखिए चहल को आखिरी बार गेंद को हवा देता है, उसमें विकेट निकलने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी खर्च हो जाते हैं, लेकिन विकेट टेकर है ये गेंदबाज। और वही फ्लाइट दे रहा है सागर, उनसे जाकर पूछ रहे हैं वहां पर कि क्या हालत है, रन रेट हो चुका है, आपको सिर्फ सिंगल डबल लेकर मैच को थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा, आखिर के उसमें देखा जाएगा मैच को, लेकिन फिलहाल विकेट नहीं खोनी है। लेकिन क्या बॉलिंग मैदान पर, बिल्कुल बड़े शॉट की वहां पर जरूरत नहीं है। सागर ने कुछ उस तरीके की बात उनसे कही होगी कि बड़ा शॉट मैं लगाऊंगा, आप सिर्फ सिंगल लगा कर स्ट्राइक को रोटेट कीजिए, बाकी बचा हुआ काम तो हम दोनों पूरा ही कर देंगे। 28 रन मुझे लगता है काफी कम, यहां से अगर 10 रन ज्यादा होते तो कुछ बात बन सकती थी कृष्णा जी, लेकिन सिर्फ 28 रन जो कि 4 ओवरों में बने, उसके बावजूद पहले ओवर में 10 रन खर्च किए। और फिलहाल दूसरा ओवर जो कि चलता हुआ संकेत के द्वारा लगभग 2 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में, माफ कीजिए सिर्फ 1 रन जो कि अब तक। सागर जो कि वापस स्ट्राइक पर आते हुए, फील्ड में हल्की सी तब्दीली। ठीक है, माहौल बेहतर है, ये कड़क माहौल मैदान पर, गर्मी का मौसम, और उसमें साथ ये हवा आज उतनी नहीं तेज, धूप कड़क लग रही है, उसके साथ वो बैटिंग मोर्चा, वो बल्ले पर लगी स्लिप में खिलाड़ी की तरफ पहुंच गए, वन बाउंस, जब तक इनको रोका जाएगा 1 ही रन वहां पर बनेगा। अभी तक 2 रन इस ओवर से 3 गेंदों पर, लगभग रनों की संख्या में इजाफा 12 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। 12 रन जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान पर दिखता हुआ श्री साई की तरफ से। फील्डर को हल्की सी वहां पर मुश्किलात होती हुई वापस से फील्ड सेट करने के लिए, लेकिन
फिर से एक बार फ्लाइट दी वहां पर और गेंद को बिना टिकट भेज दिया हवाई यात्रा पर। 6 रनों के लिए निकली गेंद सचिन के बल्ले से, उनके पारी का ये पहला बड़ा शॉट 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ स्कोरबोर्ड में तब्दीली, 18 रन जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर, आखिरी रन 10 रनों की आवश्यकता। 13 गेंदें बची इस मैच की, जो कि बड़ा शॉट मैदान पर खर्च हुआ और फिर से लेग स्लिप के बगैर से निकली गेंद, तो वहां पर रन नहीं मिलेंगे। अंतिम 12 गेंदें मैदान में बची हुई है और 10 रन जिससे पीछे इस मैच के दरमियान। सुजीत, माहौल कितना बेहतरीन है। देखिए देवीदास वहां पर दर्शकों में बैठे, आज पूरा हैंडल करे। हमारे साथ विकी भी जुड़ चुके हैं। विकी सर, आपका भी हार्दिक स्वागत। इस ग्राउंड पर जितनी भी हरकत हो रही है और सब कुछ संभालना इतना आसान, लेकिन विकी वो काम कर रहे हैं मैदान पर। बिल्कुल, लगातार 7 दिनों से इस टूर्नामेंट के पीछे लगे हुए विकी, सारा कुछ अरेंज करना पड़ा है। साइज की कमी यहाँ पर उनको खल रही होगी कहीं पर जाके, लेकिन उसके बावजूद विकी ने अपना कार्य बहुत ही खूब तरीके से निभाया। लेकिन हमेशा वो कार्य किशोर निभाता, लेकिन किशोर आज थोड़ा सा लग रहा है पीछे। किशोर आज सुबह से लेकर एक ही बार दिखा है। किशोर के किशोर सब कुछ कर सकता है, लेकिन किशोर आज थोड़े से कम दिखाई दे रहे। चलिए 12 गेंदे 10 रन मैदान पर। अब्बू सलीम के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। अब्बू सालिया मैदान पर। अब्बू सालिया, और उनको आज मैं एक नाम देना चाहूंगा, गोवा एक्सप्रेस। काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। क्या आज कुछ कारनामा करने में कामयाब हो पाएंगे अब्बू सालिम, जो कि अपनी तेज रफ्तार वाली गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। सामने उनके ही टीम के कप्तान सागर सलगांवकर, उनके साथ खेलते हुए बड़े हुए अब्बू, क्या सागर को देखिए दबाव दबाव मैदान पर। लेकिन जैसे सागर का विकेट निकलेगा ना, वो प्रेशर चलता जाएगा मैदान पर। और सागर भी इस बात को जानते हैं मैदान में कि माहौल क्या है। 12 गेंदें 10 रन मैदान पर, आसान लग रहा है सबको, लेकिन क्रिकेट में कब कहां पर बिछड़ जाए कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता। इससे शायद जब तक आप हो ना, तब तक मैच है मैदान पर। बड़े हल्का से पुश किया पॉइंट पर, एक रन वहां पर कैरेमल स्टाइल में रोका गेंद को। नितेश ये झुकना पसंद नहीं करते कभी कभी मैदान में। बिल्कुल हल्के हाथों से खेला सागर ने। नितिन, जो कि खुद ओनर है टीम के, उस गेंद को पैरों के सहारे रोका और एक रन जो कि सागर लेने में कामयाब। देखिए चेहरे पर नितिन के अभी भी मुस्कुराहट है। तो वो कैरेमल स्टाइल इसलिए कहा क्योंकि वो कुछ होता है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो झुकना वो पसंद नहीं करते मैदान पर। एक बेहतरीन माहौल मैदान पर, एक खूबसूरत माहौल मैदान में। देखिए अभी तक बात बताई जाए तो 11 गेंदें 9 रन जीत से पीछे, तो थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा काम। एक गेंद लेग स्टंप के बाहर, वहां पर छक्का लगा, अन्यथा सब कुछ आलबिल था मैदान में। गति है इस गेंद के पास, शायद देखिए वहां पर फील्डिंग खराब मैदान पर विकेट के पीछे। अब देखना पड़ेगा हम पर कैसा लेग बाइस के रूप में रन मिलता हुआ मैदान पर। 1 रन निकलता हुआ, 8 रन जिससे पीछे अंतिम 10 गेंदों पर। बहुत ही मुश्किल मौका था वहां पर विकेट कीपर के लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया जो कि फैनले के खिलाड़ी के द्वारा फील्डिंग का प्रदर्शन। 1 रन जो कि वापस से स्ट्राइक पर लेके आएगा सागर सलगांवकर को। अब तक अब्बू जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, लेकिन डॉट गेंद जब तक नहीं निकले तब तक वो प्रेशर चलेगा नहीं मैदान पर। खराब बॉल, फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर से, और यहां पर शायद हवा ने छकाया वहां पर फील्डर को। गेंद उनसे दूर जाती रही और गेंद सीधा चली गई 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद को सही अंजाम दिया सागर ने। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आखिरी 4 रनों की आवश्यकता, तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर। और वहां पर हल्की सी अपील अंपायर को, लेकिन अंपायर का बहुत ही बढ़िया नतीजा आता हुआ। काफी देर बाद कृष्णा जी जो कि डॉट बॉल देखने को मिलती हुई मैदान पर। देखिए 4 रन जिससे पीछे मैदान पर, आसान मुकाबला। वापस खेल मैदान में चलेगा सागर जो कि स्ट्राइक पर रहेगा।
ओ रिवर्स मारने का प्रयास किया चूके लाइन से, टॉट के निकलते भी 1 to go। 1 और लगातार 2 डॉट गेंदे उस चौका खाने के बाद अब्बू जो कि अपने आप को वापसी दिलाते हुए ओ नो बॉल का इशारा पहुंच चुका मैदान में, 2 रन वहां पर मिलेंगे। कॉल अच्छा है, एक नौका एक जो कि वहां पर बल्ले का मतलब 2 रन के साथ अब जीत से पीछे मात्र 2 रन की आवश्यकता मैदान पर। क्या फ्री हिट है यहाँ पर, फ्री हिट, और यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ फ्री हिट का। नो बॉल, इसका मतलब सोने पे सुहागा बल्लेबाज के लिए। इस गेंद पर आप सिर्फ रन आउट हो सकते हैं। हनुमान ज्यादातर देखते नहीं हम होते हुए बल्लेबाज को। एक रन निकला लॉन्ग लेग सी मारेगा पर पहला रन बहुत है, शायद क्या वहां पर मैच समाप्त हो जाएगा। पहला रन बहुत है, कॉल अच्छा क्या है, और लग रहा है कि दूसरा रन भी अब मैदान पर थर्ड अंपायर की तरफ आ चुका है इशारा। अब देखना पड़ेगा थर्ड अंपायर क्या कहते हैं वहां पर। और कृष्णा जी पहली बार इस टूर्नामेंट में जो कि थर्ड अंपायर के पास गया है निर्णय, देखना पड़ेगा कि क्या थर्ड अंपायर के ऊपर कोई प्रेशर है, कितना कितना कठिन होगा उनके लिए ये डिसीजन लेना। अगर ये रन कंप्लीट हो गया तो शायद ये विनिंग रन होगा, मैच समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारे थर्ड अंपायर जो कि लगे हुए अपने डिसीजन के लिए, देखते कि क्या निर्णय आता है उनके तरफ से। और शायद अंपायर थर्ड अंपायर यहां पर रेडी है। अंपायर जरा ध्यान दीजिए, थर्ड अंपायर यहां पर रेडी है। अंपायर का यहां पर इशारा आता हुआ आउट का। इसका मतलब और थोड़ा इंतजार करना होगा कृष्णा जी इस जीत के लिए। और सिर्फ एक रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। सामने संदेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, और वहां पर नजाकत के साथ कुछ अलग करने की कोशिश, स्वीप करना चाहते थे वहां पर सागर, आगे वाले पैर को और थोड़ा आगे लेकर गए और लेग साइड की दिशा में खेलने की वहां पर कोशिश थी, लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेम जो कि संदेश के खाते में। और यहां पर हाँ ना में दोनों बल्लेबाज बीच में अटक गए। स्नेडन जो कि बिल्कुल तैयार नहीं थे उस रन के लिए, और सागर जो कि मुझे कुछ पता नहीं चला सागर कर क्या रहे थे भाई। आप हाथ में शॉट खेला, आप ही बुला रहे, आप ही आउट हो जाएंगे। और वहां पर शायद वहां पर रन था ही नहीं कृष्णा जी। नहीं, आवश्यक सेट खिलाड़ी थी, आवश्यकता नहीं थी। इक्का तो बॉल अगर डॉट पे निकल जाती तो वो सेट है, उनके लिए उतना प्रेशर नहीं था मैदान पर। और मुझे नहीं लगता कि यहां से प्रेशर लेना चाहिए, क्योंकि 6 गेंदे और 1 रन की आवश्यकता। इसका मतलब नॉर्मल आपको खेलना होगा। सारे खिलाड़ी जो कि आप देख सकते 30 यार्ड सर्कल के अंदर है। शायद उस 1 रन की तलाश में सागर के ऊपर जो प्रेशर बढ़ा ना, उसी के कारण रन आउट हो गए। और सागर के आउट होने के बाद सिद्धार्थ जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर। कृष्णा जी क्या यहां से कुछ मैजिक हो सकता है? जो ओवर डाक्टू ने अगले साल डाला था, क्या वो और यहां पर देखने को मिल सकता है संदेश के द्वारा? क्रिकेट है ये, हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए हम चलिए अब अच्छा बोलते हैं, हो सकता है मैदान पर। देखिए ये देखिए यहां पर ये सब कुछ कर दिया, लेकिन गेंद निकली लॉन्ग ऑफ पर, ये मैच समाप्त हो जाएगा। और यहां पर पहला मुकाबला जो कि श्री साई क्रिकेटर्स ने आसानी से अपनी जीत वहां पर दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने इस जीत के साथ बता दिया कि क्यों वो पिछले साल डिफेंडिंग चैंपियंस थे और इस साल कौन से इरादे के साथ मैदान में उतरे, इस पहले मुकाबले से पता चल चुका है। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा,
इसके बाद जो